Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity Ghatna Chakra series and we are covering the 2026 edition. Okay, in the previous video हम पंचायती राज टॉपिक के MCQs कवर कर रहे थे and we have done till question number 53. आज हम 53 के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. Okay, so let us see question number 54. It is assertion and reason based. Assertion A. Reservation in the office of Pradhans, Pramukhs and Adhyaksh in Panchayat for women including SC, ST and OBC has brought about a distinct change in their working. So obviously after the reservation of women, ठीक है 73rd से भी हुआ है reservation for women like 1/3 right? So obviously इससे काफ़ी ज़्यादा change आया है in the working of the system. Women का role it has been now recognized. Reason they are saying women of the rural areas were demanding this reservation for a long time. See reservation दिया गया है women को but ऐसा नहीं है that वो डिमांड कर रही थी. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, दे वर नॉट डिमांडिंग. सो बेसिकली असर्शन आपका करेक्ट है एंड रीजन आपका रॉन्ग है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, रिजर्वेशन से आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए. इट इज इन आर्टिकल 243D. जब आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ ना, स्पेशली जो PYQs में आए हुए हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैम. आप कहीं नोट कर लो इफ यू वांट इन शॉर्ट. ओके, so first statement is saying it is provided for in article 243D clause 3 of the Indian constitution. Yes, it is correct. Reservation is in article 243D only. The reservation shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334. This is wrong. The time period of the reservation is basically given by the government itself when it is like extending the reservation system. Okay, वो बता देते हैं like it is for next 10 years or next 20 years. Okay, so accordingly option A will be the correct answer. Only the first statement is correct. Next, which one of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment Act in context to Panchayati Raj? तो basically in 4 statements में से one is there but other 3 are correct and one is incorrect. Okay, so let us see. 30% seats to be reserved for women in all elected rural local bodies at all levels. See, we have not studied this anywhere. Like 30% वाला हमने कहीं नहीं पढ़ा है. हमने women के लिए हमेशा 1/3 पढ़ा है. So first will be wrong. Second, the states will constitute their finance commissions to allocate resources to Panchayati Raj institutions. Yes, this is correct. Obviously, the finance commission will be constituted by the states itself. Third, the Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than 2 children. This is something very odd and we have not read anywhere कि अगर Panchayati Raj functionaries will have more than 2 children, they will be disqualified. No, this is meaningless. This will also be wrong. Next, the elections will be held in 6 months' time if Panchayati Raj bodies are superseded or dissolved by the state government. Yes, this is correct. Like if it is dissolved by the state government, within 6 months election should be there. Okay, so basically यहाँ पे 2 statements wrong है. Okay, that is why the answer is not clear yet. So let us leave it for now. But I have told you what are correct and wrong on the basis of Ghatna Chakra. Next, under which of the, see this is also, let's not consider it. This, the reservation of seats of women in Panchayat has been provided by an amendment. सी वुमेन की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत आया अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. इसी के थ्रू अपना रिजर्वेशन फॉर वुमेन आया है इन पंचायत 1/3. आर्टिकल मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी 243D. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. रिजर्वेशन भी 73rd से ही आया है. नेक्स्ट, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, वेरी मच क्लियर इट इज, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. आर्टिकल ऑल्सो यू नो नाउ. नेक्स्ट, which article of the constitution guarantees the 1/3 representation of women in panchayat? Same, 1/3 representation means reservation and reservation of women is in article 243 clause D. Clear? Next, which one of the following articles provides reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe? Same question, scheduled caste and scheduled tribe के लिए they are saying, so it will be article 243D. Clear? Next, which state government, let us leave this also for now. Clear? Next, because the answer is yet not clear. 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज लीगलाइज इन सर्टेन स्टेट्स. देखो कुछ स्टेट्स में वुमेन का रिजर्वेशन 50% कर दिया गया पंचायती राज में. सो वो स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार यस, उत्तराखंड यस, मध्य प्रदेश यस, हिमाचल प्रदेश यस. सो बेसिकली ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. कीप इन माइंड दिस. ओके, इसके अलावा आपके और भी स्टेट्स हैं वेर 50% मोर देन 50% इज देयर, वो सब ये हैं. यू कैन रीड बिहार, MP, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटका, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन यूपी इज, सो याद रखना यूपी में इट इज 1/3 ऑफ टोटल सीट्स ओनली. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शंस फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ. सो शेड्यूल कास्ट में जो अप्लाई नहीं होगा इट विल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. कीप इन माइंड, रिजर्वेशन जो हो रहा है सीट्स का इन पंचायत इलेक्शंस फॉर SC यूपी में भी है एप्लीकेबल, असम में भी, हरियाणा में भी, बट इट अरुणाचल प्रदेश इट इज
नॉट एप्लीकेबल बिकॉज यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ही नहीं है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? ये बात कर रहे हैं पेसा एक्ट की, तो आप याद रखना इट वाज पास्ड इन 1996। पेसा एक्ट 1996, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which committee report paved the way for Panchayat's extension to scheduled areas act पेसा 1996? ये कह रहे हैं पेसा एक्ट 1996 के लिए किस रिपोर्ट ने पे करा था वे? फॉर इंश्योरिंग ट्राइबल सेल्फ रूल फॉर पीपल लिविंग इन शेड्यूल एरियाज। सो आप ये याद रखना, इट वॉज द भूरिया कमेटी विच रिकमेंडेड एंड फिर अपना पेसा एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। Next, the government enacted the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? ये कह रही है इसमें से कौन सा पेसा का ऑब्जेक्टिव नहीं है? To provide self governance है, to recognize traditional rights yes, to free tribal people from exploitation yes, but to create autonomous regions ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है पैसा का। ओके, so option C will be the correct answer. How can this act give a power to create autonomous regions? Okay, this is something very high. Next, in which of the following groups of the states PESA 1996 is not enforceable? See, this is a very important question. आपको पता होना चाहिए पेसा कौन से स्टेट्स में है एंड कौन से में नहीं है। सो आप याद रखना, इट इज़ देयर इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन 3 स्टेट्स में है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र यहाँ पर भी है। ओके, इसके अलावा आपका गुजरात, ओडिशा एंड तेलंगाना, इन दीज स्टेट्स ऑल्सो इट इज़ देयर। क्लियर। Let us see next question related to this. In which of the following groups of the states PESA 1996 is not enforceable? राजस्थान, हाँ राजस्थान में है। ओके, दिस विल बी रॉन्ग। आंध्र प्रदेश में भी है, असम, मेघालय, तमिलनाडु, यहाँ नहीं है कहीं। उन्होंने पूछा कहाँ नहीं है, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, in the areas covered under the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act 1996, what is the role and power of the Gram Sabha? See, Gram Sabha has the power to stop transfer of land in scheduled areas. Yes, this is correct. Gram Sabha के पास इतनी power है that it can stop the transfer of land. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. This is also correct. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral. This is wrong. Gram Sabha के पास ये power सिर्फ minor mineral से related है। Ownership तो full है उसके पास minor forest produce की। So accordingly, option B will be the correct answer. Option B. Clear? Next, what is correct about the powers of Zilla Panchayat to schedule areas to plan water bodies? Yes. To control over institutions and all social sectors? Yes. To control on tribal subplans? Yes. To exercise other functions as conferred by state government? Yes. To all of the above. Basically these all are the areas of local self government only, so ये सभी perform करते हैं जिला पंचायत। So all of the above will be the answer. They are saying Gram Sabha means in the next question. I already told you Gram Sabha is the list of the eligible persons in the electoral rolls. Persons registered in the electoral rolls related to a panchayat area at the village level. So this is a Gram Sabha. ये है अपनी Gram Sabha. Next, which of the following statements is not true regarding Gram Sabha? याद रखना, इनमें आपको बताना है क्या ट्रू नहीं है। First, it has the powers and functions at the village level like state legislature has state level. सही बात है, जो काम state legislature state level पे कर रहा है वो काम Gram Sabha विलेज लेवल पर कर रहा है। सो इट इज करेक्ट। हमें बताना है क्या ट्रू नहीं है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इट्स पावर्स आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बस यही रॉन्ग है। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ये डिसाइड करती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट। सो नॉट ट्रू, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट? वी हैव टू टेल इसमें से क्या करेक्ट है। इन अ ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन वन विलेज। करेक्ट हो सकती है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा हेल्ड इन ईच विलेज। यस, जहाँ अपनी ग्राम सभा होंगे हर एक विलेज में होगी मीटिंग। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज हेल्ड इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्राम पंचायत। नो, दिस इज रॉन्ग। हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्राम पंचायत में तो मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की। गेटिंग इट? सी, जो ऑप्शन 5 है ये पढ़ो, इसमें यही गिवन है। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत, ये करेक्ट है। थर्ड विल बी रॉन्ग। फोर्थ, मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज हेल्ड इन ईच विलेज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज नॉट हेल्ड इन ईच विलेज। ओके, सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा? हमें बताना है इसमें से क्या करेक्ट नहीं है ग्राम सभा के बारे में। ओके, फर्स्ट है 1/3 कोरम इज एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। दिस इज करेक्ट। 1/3 कोरम जरूरी है इसकी मीटिंग के लिए एंड इस कोरम में 1/3 जो है कोरम वो वुमेन का होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ 1/3 वुमेन इज एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, अभी बताया मैंने आपको, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, सरपंच एंड पंच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑब्वियसली देयर शुड बी द हेड हु विल इंश्योर कि हाँ कोरम मेंटेन्ड है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ,
द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा कैन बी एडजर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। यस, ये तो अपना पार्लियामेंट हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर हर जगह ये होता है। लाइक अगर आपका कोरम नहीं है, मीटिंग विल बी एडजर्न, होगी ही नहीं मीटिंग। क्लियर? तो सेम इज विद ग्राम सभा ऑल्सो। फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ, कोरम इज असेंशियल इन एडजर्न मीटिंग। नो, कोरम अगर नहीं है तभी तो आपकी एडजर्न मीटिंग हो रही है। सो ऑप्शन फिफ्थ विल बी करेक्ट। देयर विल बी एडजर्न मीटिंग मीन्स नो मीटिंग, बेसिकली मीटिंग कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरम। नेक्स्ट, द बजट कैन बी पास इन द एडजर्न मीटिंग वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट। ऑब्वियसली नॉट, जहाँ कोरम प्रेजेंट नहीं है वहाँ बजट कैसे पास कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी पास इन द एडजर्न मीटिंग। रॉन्ग, एडजर्न मीटिंग में आप कुछ पास कर ही नहीं सकते हो। सरपंच कैन बी डिसमिस्ड इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन 5 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा। ये आप याद करना, दिस इज करेक्ट, कि अगर लगातार 5 मीटिंग्स में द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इन दैट केस सरपंच विल बी डिसमिस्ड। बट इस क्वेश्चन में आपको बताना था नॉट करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली 5th, 6th एंड 7th इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड उप सरपंच इन मध्य प्रदेश। तो जब आपका सरपंच एंड उप सरपंच नहीं होंगे, उस इन दैट केस the punch of the respective gram panchayat elected by the members present in the gram sabha meeting, they will preside the meeting. Okay, next, this section of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 has been amended to replace the expression gram vikas adhikari in place of gram sevak. तो आप ये रन कर लेना कि सेक्शन 89 में हुआ था ऐसा कि लाइक ग्राम सेवक was replaced by ग्राम विकास अधिकारी. नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन स्केड्यूल एरियाज। तो आप याद रखना, स्केड्यूल एरियाज में ग्राम सभा की मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड बाय स्केड्यूल ट्राइब मेंबर। ओके, जो एसटी का मेंबर है इलेक्टेड ग्राम सभा में, वो प्रिसाइड करेगा। स्केड्यूल ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू। अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए 73rd अमेंडमेंट क्या है, जिसने अपना पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, नो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 24th अप्रैल। याद रखना, इसे हम नेशनल पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं 24th अप्रैल। दिस अमेंडमेंट विल एनकरेज इन राजस्थान। तो क्या एनकरेज करेगा? 73rd अमेंडमेंट मतलब क्या? पंचायती राज। ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो उससे क्या होगा? सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, ग्रास रूट लेवल पे, राइट। सेंट्रलाइजेशन, नो नो नो, ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओनली सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से एकदम क्लिक होना चाहिए। क्या? पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। सो पंचायती राज सिस्टम, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ, हमें बताना है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यस। 3-tier गवर्नेंस विद बायो रिलेशंस, यस। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यस। hierarchy construction, no. It is not constructing like a proper hierarchy. It is like giving more powers to the grassroots level. ठीक है? So accordingly option C will be the correct answer. Next, the fundamental object of the पंचायती राज system is to ensure which among the following. ये बोल रहे हैं पंचायती राज का fundamental objective क्या है? क्या पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट है? यस। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है? सी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, गेटिंग इट। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इज मेनली द वर्क ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पीएम सीएम अपने मिनिस्टर ये सब हम अपॉइंट करके भेज रहे हैं। सो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी विल नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली ये तो होगा ही ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी, गेटिंग इट। फाइनेंशियली बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसाइड करता है लाइक क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे फाइनेंस मोबिलाइजेशन के। सो जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो है सिर्फ ऑप्शन 1 and 3, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन, तो याद रखना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू, एकदम क्लिक होना चाहिए, क्यों हुआ था? डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर, ग्रास रूट लेवल को पावर देने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सो याद रखना सेंट्रल कंट्रोल ये नहीं है अपना कोई एट्रीब्यूट। सेक्रेटरी स्टेटस है, पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटी का ये भी है। पावर टू रेज फाइनेंसेस बाय टैक्सेशन, हाँ स्टेट गवर्नमेंट देता है थोड़ी थोड़ी पावर कि हाँ आप रेज कर लो टैक्सेस, बट सेंट्रल कंट्रोल ये नहीं है कोई एट्रीब्यूट लोकल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी क्लियर। Rivalry, no. Training, no. Decentralization, option C will be the correct answer. What is the main characteristic of Panchayati Raj system of government? 3 tiers of government है इसके पास, yes. It aims to give social and economic justice to villages, yes. Some members of parliament are as representatives in जिला परिषद, yes. Possible. So basically सारी statements correct हैं. Accordingly, option D will be your correct answer. Which one of the following statements regarding Panchayati Raj is not correct?
ठीक है, पहला बोल रहे हैं पंचायत सिस्टम हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन विलेज थ्रू एजेस, यस। लाइक हम अपनी एशियंट हिस्ट्री की भी बात करें, एशियंट में भी हम पढ़ते हैं ये चीज़ कि स्टार्टिंग में एक एल्डरली होता था एक विलेज में जो डिसाइड करता था केसेस। तो बेसिकली जो पंचायत का सीन है, दिस हैज़ बीन कमिंग थ्री सिंस एजेस। सो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है, हमें बताना है नॉट करेक्ट। 73rd अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन 15th अगस्त, रॉन्ग, मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज 24 अप्रैल। इसे ही हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, यही नॉट करेक्ट है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक आर्टिकल 243G इन्होंने गिवन है यहाँ पर, ये आप अच्छे से जरा देख लीजिए एक बार। 243G क्या है? इट इज रिलेटेड टू द पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ओके, आर्टिकल 243G इज रिलेटेड टू पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत एंड एड्स टू देयर इंपॉर्टेंस। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूछ लिया इन्होंने ऑप्शन में, कल डायरेक्टली पूछ लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज? अब तक तो पता ही है, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं। डी विल बी द करेक्ट आंसर, टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स फुल कॉपरेशन ऑफ, ऑब्वियसली वो लोकल लेवल पे काम कर रहा है तो उसे लोकल पब्लिक का ही फुल कॉपरेशन चाहिए होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लोकल पब्लिक। नेक्स्ट, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, करेक्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, करेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Consider the following statements. In the post 73rd amendment era, there has to be decentralization of, ये कह रहे हैं 73rd amendment के बाद किस चीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन होगा? डिसीजन मेकिंग का, यस, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग थोड़ी थोड़ी अपनी लोकल या विलेज लेवल पर भी आ जाएगी। सिस्टम एज अ होल, ऑब्वियसली सिस्टम एज अ होल विल बी डिसेंट्रलाइज बिकॉज अ न्यू टियर इज एडेड, दैट इज अ थर्ड टियर। जुडिशियल पावर्स, नो, दिस इज इनकरेक्ट। जुडिशियल पावर्स से क्या होगा? नो, जुडिशियल पावर्स थोड़ी डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, दिस इज रॉन्ग। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, हाँ, ये थोड़ी डिसेंट्रलाइज होंगी, लाइक कुछ कुछ चीज़ों में आपका एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, लाइक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? कह रहे हैं क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का? ऑटोनॉमी, रॉन्ग, ये तो है करेक्टरिस्टिक। पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये भी है। टू इंस्टॉल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज़, ये कैसी और सी चीज़ है? आई मीन कि लाइक डिसेंट्रलाइजेशन में इसका क्या रोल रहेगा? कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का कि हम लोकल कम्युनिटी में नॉन कॉपरेशन भर दें या नॉन कॉन्फिडेंस भर दें। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी अपना करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन बेस, असर्शन है आपका पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल मैटर्स इज नाउ डिक्रीज एट द लोकल लेवल। ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम हो गया है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दे दिया है। अब पावर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के पास कि वो कुछ डिसीजंस खुद से ले पाएं, दे डोंट नीड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस मच। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी रीजन बता रहे हैं, द रूरल लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रेजुविनेटेड बाय द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली दिस इज द रीजन, मैंने आपको भी बताया। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये रीजन पढ़ने से पहले आई वाज टेलिंग यू कि 73rd ने कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दिया है जिससे उन्हें पावर्स मिली है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये आप याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं होती लोकल बॉडीज़ पर। एक केस में वो है सिटीजन्स कंप्लेंट्स, सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, कुछ भी है, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होगी। क्लियर और नॉट? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर अर्बन लोकल बॉडीज। ये कह रहे हैं क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल रखता है ओवर अर्बन लोकल बॉडीज? लेजिस्लेटिव मैटर, यस। फाइनेंशियल मैटर, यस, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा, वो डिसाइड करेगा। इन पर्सनल मैटर्स, यस। डी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीवेंसेज, नो। अभी हमने पढ़ा है कि कंप्लेन के केस में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं रहती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट कि ए बी सी करेक्ट है बट डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द नोमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वाज द रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ विच इंडियन लीडर? तो आप याद रखना ये इट वॉज द व्यू ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी सेड दिस, ओके, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी ईच विलेज अ लिटिल रिपब्लिक। वो चाहते थे कि हर विलेज एक लिटिल रिपब्लिक हो जहाँ पे वहाँ के लोकल पीपल ही राज करें। ओके, Name the committee which was set up by the NDC in 1957 for the reorganization of CDP and NES which suggested a 3-tier system of rural local government. तो 3-tier system तो हमें पता है रूरल लोकल गवर्नमेंट में। अगर आपको ऊपर का कुछ समझ नहीं आ रहा है तब भी आपको इतना तो पता है कि 3-tier system जो है ये सजेस्ट करा था अपना बलवंत राय मेहता कमेटी ने। सो अकॉर्डिंगली आप आंसर तक तो पहुंच जाओगे। ओके, ये आप याद रखना दैट CDP है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड NES है नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। नेक्स्ट, कमेटी विच रिकमेंडेड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, आपको पता है इट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। एंड बलवंत राय मेहता को हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज। एंड फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट हम कहते हैं लॉर्ड रिपन को। ओके, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? सो आप याद रखना इट वाज 3-tier।
village level, block level and district level. Clear? Which one of the following states was the first to set up Panchayati Raj institutions in accordance with the recommendations of बलवंत राय मेहता कमेटी? सो हम पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हुआ था. आई थिंक ये 2 अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, आई एम नॉट श्योर विद द डेट. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वॉज, हमें पता है इट वॉज बलवंत राय मेहता, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट. नेक्स्ट, द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, सेम इट वॉज हेडेड बाय, ये पूछ रहे हैं, बलवंत राय मेहता. क्लियर? द कमेटी वॉज हेडेड बाय बलवंत राय मेहता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज सिस्टम? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, राव कमेटी. सो 3-tier वाली बात आप याद रखना, इट वॉज बलवंत राय मेहता कमेटी. ओके, 3-tier इन्होंने रिकमेंड किया था. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है आपका बलवंत राय मेहता, इन्होंने हमें पता है इन्होंने क्या किया था, इट वॉज 3rd-tier, सो इनका A का 2 है. अशोक मेहता, यू नीड टू रिमेंबर, इन्होंने 2-tier की बात की थी, तो बेसिकली इसका होगा फर्स्ट. LM सिंघवी की अगर मैं बात करूं, ही टॉक्ड अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, सो सी का हो जाएगा 4. एंड GVK राव कमेटी, इंप्रूवमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर. तो 2, 1, 4, 3 आपका होना चाहिए सीक्वेंस. बलवंत राय मेहता ने 3-tier सिस्टम, अशोक मेहता ने 2-tier सिस्टम. इतनी बात तो क्लियर है? टेल मी, बलवंत राय मेहता 3-tier एंड अशोक मेहता 2-tier, ये पूछा जाता है. बलवंत राय मेहता 3-tier, अशोक मेहता 2-tier. अभी और भी हैं, GVK राव कमेटी, गाडगिल कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ठुंगोन कमेटी, वी विल सी, इन पे क्वेश्चन होंगे. LM सिंघवी की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने किस चीज़ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज? सेम क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी. अब तक आपको एकदम क्लिक करना चाहिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier की बात की थी एंड अशोक मेहता कमेटी ने 2-tier की बात की थी. फर्स्ट इज 3-tier डेमोक्रेटिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर टू बी सेटअप एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. करेक्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी ने यही बात की थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3-tier पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता? अभी बताया मैंने, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, ये 3 है. ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट विलेज पंचायत था विलेज लेवल पर, इसे हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं. ओके, पंचायत समिति था आपका ब्लॉक लेवल पर. क्लियर? एंड जिला पंचायत था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. सो बेसिकली ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये लेवल नहीं है 3-tier में. बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3-tier सिस्टम करा था वो था ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर. सो आपके ब्लॉक लेवल पर थी पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है आपका जिला पंचायत एंड विलेज लेवल पर है आपकी ग्राम पंचायत. क्लियर? नेक्स्ट, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, सो याद है राजस्थान के बाद जो अपनी सेकंड स्टेट बनी थी, इट वॉज आंध्र प्रदेश. सेकंड स्टेट वॉज आंध्र प्रदेश. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट थी अपनी राजस्थान एंड सेकंड थी आंध्र प्रदेश. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 इन, अब तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट, द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाय पंडित नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959. मैंने आपको अभी ऊपर डेट बताई थी, वो करेक्ट थी, 2 अक्टूबर ही है. एंड आपको ये तो पता है स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट वही सेम पूछा इन्होंने, टू इम्प्लीमेंट. सो बेसिकली इम्प्लीमेंट आई थिंक इट वॉज मध्य प्रदेश, दैट इज वाई यहाँ पे आंसर नहीं है गिवन. लेट अस लीव इट फॉर नाउ. द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज, अडॉप्ट हमें बताइए किसने किया था? राजस्थान ने. हमें डिस्ट्रिक्ट भी पता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट. हमें डेट भी पता है, 2 अक्टूबर. नेक्स्ट, वैन एंड वेयर वॉज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड? आ गया ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच प्रपोज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज? अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, इट वॉज बलवंत राय मेहता. क्लियर? नेक्स्ट, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय, क्लियर? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बलवंत राय मेहता. आर्किटेक्ट कौन है? बलवंत राय मेहता. नेक्स्ट, स्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय सेम बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957. इसकी रिकमेंडेशन पर अपनी पंचायती राज सिस्टम वॉज मेड. एंड इससे कितने टीयर रिकमेंड करे थे? 3 tiers, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, नेक्स्ट, विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज? सेम क्वेश्चन रिपीटिंग, बलवंत राय मेहता. 3-tier सेम, बलवंत राय मेहता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कंसर्न विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? तो आप याद रखना, LM सिंघवी मैं आपको बता चुकी हूँ, अशोक मेहता, बलवंत राय तो आपको पता ही है, इसने 2 tier करा था, इसने 3 tier रिकमेंड करा था. LM सिंघवी कमेटी इज ऑल्सो देयर, बट PVN राव कमेटी ये नहीं है.
इट इज़ नॉट कंसर्न विद पंचायती राज। इन्होंने यही पूछा है कौन सी कंसर्न नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक बार थोड़ा सा कमेटीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी आई अशोक मेहता, सॉरी बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, सबसे पहले आई थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर आई आपकी अशोक मेहता कमेटी। ओके, 1977। फिर आई आपकी GV राव कमेटी। ओके, फिर आई आपकी LM सिंघवी कमेटी, फिर आई आपकी हनुमंता राव कमेटी। एटलीस्ट आपको इतनी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, बैग LM फिर हनुमंता राव, बैग LM, एटलीस्ट दिस सीक्वेंस यू मस्ट नो, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर्स तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वर अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता है सारी ही हुई है, LM सिंघवी भी, GV राव भी, अशोक मेहता भी एंड बलवंत राय मेहता भी। ओके, ये सारी ही अपॉइंट हुई थी कमिटीज टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज। क्लियर, नेक्स्ट हमें मैच करनी है ईयर्स के साथ कि कौन सी कमेटी किस ईयर में बनी थी। ओके, तो अब ये लर्न कर लेना क्योंकि PYQ आ चुका है। जो अपनी CH हनुमंता रॉय कमेटी है ये बनी थी अपनी 1984 में। ओके, फिर है आपकी GV राव कमेटी। GV राव कमेटी आपकी बनी थी 1985 में, ये बनी थी आपकी 1985 में। फिर आई आपकी अशोक मेहता कमेटी, ये बनी है आपकी 1978 में। ओके, फिर आई आपकी LM सिंघवी कमेटी, ये बनी है 1986 में। देन बलवंत राय मेहता कमेटी, दिस कमेटी वाज मेड इन, वेट, सो बलवंत राय मेहता कमेटी इज मेड इन 1957। सो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन डी करेक्ट है। CH हनुमंत रॉय कमेटी 1984 में। ओके, ओके, GV राव कमेटी 1985। ओके, then Ashok Mehta Committee 1978, okay, then LM Singhvi 1986, okay, and Balwant Rai Mehta will be 1957. Clear? Please make notes out of them because this is a very like question जो आपको learn करना पड़ेगा proper rectification इसमें। okay, next consider the following committees and arrange these in chronological order। chronology से मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी है, बैग, और बैग के बाद आता है LM। ठीक है, इतना हम करते हैं। पहले आएगा आपका B से है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, पहला आना चाहिए आपका थर्ड, वो है ऑप्शन बी या डी में, ये दोनों कट गए। फिर आपका आना चाहिए अशोक मेहता सेकंड, थर्ड के बाद फर्स्ट, ऑप्शन बी। सी, इस ट्रिक से आप एकदम क्रोनोलॉजी तक पहुंच रहे हो ना। बैग LM, पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, देन अशोक मेहता कमेटी, देन GV राव कमेटी एंड देन LM सिंघवी कमेटी। यू आर रीचिंग द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन दे आर आस्किंग द ईयर्स ऑफ द कमिटीज। लेट अस सी। PK तुंगवान कमेटी आप याद रखना 1988। ओके, अशोक मेहता कमेटी का है आपका 1977, बलवंत राय मेहता कमेटी का है आपका 1957 एंड LM सिंघवी का है 1986। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम। आपको पता है अशोक मेहता भी है, संथनम भी है एंड बलवंत राय मेहता भी है। याद रखना ये VKRV कमेटी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, दिस इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, VKRV राव कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज। ओके, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक्स के नेम पर थी। ठीक है, and he served as a member of the Committee for National Income. He headed United Nations Commissions for Economic Development. Next, which one of the following committees is not associated with पंचायती राज सिस्टम। दिनेश गोस्वामी कमेटी नहीं है, याद रखना। ओके, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड थी कमेटी, आई रिमेंबर, या देखो गिवन भी है यहाँ पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है ये कमेटी। क्लियर, बाकी 3 कमेटीज जो है आपकी ये रिलेटेड है पंचायती राज से, LM सिंघवी, अशोक मेहता, सादिक अली। क्लियर, सो MCQ से भी आपको पता चल रहा है, जैसे सादिक अली हमने अभी नहीं पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, बट अगर अब ये आई है तो आपको याद रखना है कि हाँ ये कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज, बिकॉज जो न्यू MCQ फॉर्म होगा उसमें आ सकती है ये ऑप्शन में। क्लियर, नेक्स्ट, विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज सिस्टम। आपको पता है अशोक मेहता ने 2 टियर की बात की थी एंड जो आपका बलवंत राय मेहता है उसने 3, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर की एंड अशोक मेहता ने 2 टियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड, सेम क्वेश्चन, हमें पता है अशोक मेहता ने किसकी बात की थी, 2 टियर की, एंड अगर बलवंत राय मेहता कमेटी की बात होगी उसने बात की थी 3 टियर की। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी और पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टियर सिस्टम। ये तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या कहा था, 3 टियर को रिप्लेस करके 2 टियर ले आओ, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, दिस इज नॉट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बस इन्होंने ऑप्शन ए की बात की थी कि 3 टियर रिप्लेस हो जाएगा 2 टियर से। क्लियर और नॉट, सो बेसिकली इन्होंने ब्लॉक की बात नहीं की थी, इन्होंने बात की थी डिस्ट्रिक्ट की। अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी में आपका ओनली 1 गिवन है, बहुत ध्यान से ऑप्शन प्लेसमेंट भी देखनी है। क्लियर, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 130 ऑफ घटना चक्र। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, सारे ऑलमोस्ट PYQs ही हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ट्राई टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस, जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, गेटिंग इट,
एंड इन दिस चैप्टर वी फाइंड लाइक ईयर से रिलेटेड एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रिलेटेड थोड़े हैं फैक्ट्स, तो यू नीड टू रिमेंबर. So if I was able to explain you well, do like the video and do subscribe to the channel for more videos. We will meet in the next video.